یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں جو بات کہی جائے تو اس کا انکار کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ کے چچیرے بھائی ان کے خاندان کے لوگ خود جو ان کی جو ہے یعنی ہجو یعنی برائی بیان کرتے تھے۔ گردن مار جانے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو۔ ابو سفیان کے خاندان نے اموی حکومت کی، رسول اللہ کو زہر دے کے مروایا گیا اور علی خلیفہ بننے والے تھے، مگر علی کو خلافت سے ہٹانے کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان کو خلافت میں لے کے آئے تاکہ ابو سفیان کے خاندان کے لوگ خلافت کر سکیں۔ ابو سفیان کہ یہاں عباس ہے اور ابو سفیان ہے، ایک جو ہے امویوں کا بانی ہے، ایک عباسیوں کا بانی ہے۔ ابو سفیان اور اس کے جو جتنے بھی ماننے والے تھے ان لوگوں کو بڑا دھچکا لگا اور وہیں پر ان لوگوں نے میٹنگ کر کے راستے میں رسول اللہ کو قتل کرنے کا پلان کرتے ہیں، مگر وہ پلان کامیاب نہیں ہوتا۔ اس جرم کو چھپانے کے لیے مدینہ میں اور تمام مسلمانوں میں یہ پھیلا دیا گیا کہ سعد بن عبادہ کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا، اس لیے ایک جن نے سعد بن عبادہ کو مار ڈالا ہے۔ کہ اسلام کی تاریخ کو اگر آپ جو ہے نٹسل میں جو ہے بتائیں گے تو وہ ایسی ہوگی کہ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، پھر سب نے سب کو مارا، جی جی بالکل تاریخ ختم شو۔ 5 4 3 2 1 ڈاکٹر طاہر صاحب آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں ابھی؟ ہاں، وہ آپ نے استفسار کیا تھا ابو سفیان کے اسلام کے بارے میں، تو میں یہاں لے کے آیا ہے، اگر چاہتے ہیں تو پیش کر دیتا ہوں یا جی پھر سر بعد میں پلیز۔ رکھیں۔ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ بہت مشہور کتاب ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اس موضوع پر، سیرت کے جو ہے موضوع پر ایک معرکۃ الآراء کتاب کہلاتی، بہت مشہور ہے اور اس کو باقاعدہ ایوارڈ ملا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس میں جو بات کہی جائے تو اس کا انکار کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب آگے۔ ایسے کتابوں کو ایوارڈز بھی دیتے ہیں خود ہی لوگ؟ ہاں ہاں دیتے ہیں، جس میں جو ہے وہ جس میں جاٹوں کی بارات بھی ہو اس کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے۔ جی جی ہاں، یہ کتاب انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، بہت ساری زبانوں میں انٹرنیٹ کے اندر موجود ہے، PDF میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جی اور اس کے جو آتھر ہے وہ انڈیا کے ہیں، جی مولانا صفی الرحمان۔ صفی الرحمان مبارک پوری۔ جی 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 ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابو غفار رضی اللہ عنہ کی تقرر ہوئی۔ جوفا میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے، وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ یہ عباس یہ وہی ہیں جن کے نام پر عباسی خلافت بنی ہے۔ اچھا ٹھیک جی ہاں، تو عباس بن عبد المطلب بھی، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ عباس بن عبد المطلب بھی شروع میں اسلام نہیں لائے، یہ بھی جو تقریباً کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے کچھ پہلے اسلام لائے، جیسے کہ یہاں پہ ہے۔ جی تو عباس بن عبد المطلب وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا ایک جگہ کا نام ہے، ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے اور آپ کی ہجو کیا کرتے۔ یعنی یہ دیکھیے، ابو سفیان بن حارث یہ رسول اللہ کے چچیرے بھائی تھے، جی یہ دوسرا ابو سفیان ہے۔ وہ جو ابو سفیان معاویہ کے والد تھے وہ الگ ہے، یہ دوسرے ہیں۔ اچھا یہ دوسرا ہے۔ اچھا جی، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ دو ابو یہ سفیان۔ ابو سفیان بن حارث یہ شاعر بھی تھے اور رسول اللہ کے نسب پر اس نے حملہ کیا۔ جی ہاں، تو اس سے جو ہے رسول اللہ خفا تھے، اسی چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، اچھا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک برطانوی سر اور احمد سر، عبدالحمید سر، آپ یہاں پہ دھیان دیجئے کہ جی خود رسول اللہ کے چچیرے بھائی ان کے خاندان کے لوگ
खुद जो इनकी जो है यानी हिज्र यानी बुराई बयान करते थे। जी और ये कब का वाकया है? 8 हिजरी का। अच्छा जी ठीक है। जी ये सूरत देखकर हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके चचेरे भाई और फूफीजाद भाई ही आपके यहाँ से बदबख्त हूँ। इधर हजरत अली ने अबू सुफियान बिन हारिस को सिखाया कि तुम रसूलुल्लाह के सामने जाओ और वही कहो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे कहा था कि तल्ला है लक़द आसर अल्लाह। ये खैर इसको हम जाने देते हैं। ये जी तो वो अबू सुफियान बिन हारिस जो रसूलुल्लाह के चचेरे भाई थे उनका वाकया है। जी अब हम जो असल अबू सुफियान है मुआविया के वालिद उनकी हम जी बात करते हैं। आगे यहाँ पे है कि रसूलुल्लाह ने अपना सफर जारी रखा। आप और सहाबा रोजे से थे, लेकिन असफान और कोदैत के दरमियान कोदैत नामी चश्मे पर पहुंचकर आपने रोजा तोड़ दिया और आपके साथ सहाबा किराम ने भी रोजा तोड़ दिया। मर्रुज जहरान में पड़ाव डालने के बाद हजरत अब्बास रसूलुल्लाह के सफेद खच्चर पर सवार होकर निकले। जी ये जो मर्रुज जहरान है जी मक्का में दाखिल होने से पहले का वाकया है। जी मर्रुज जहरान में पड़ाव डालने के बाद अब्बास रसूलुल्लाह के सफेद खच्चर पर सवार होकर निकले। उनका मकसद ये था कि कोई लक्कड़हारा या कोई भी आदमी मिल जाए तो उससे कुरैश के पास खबर भेज दें ताकि वो मक्के में रसूलुल्लाह के दाखिल होने से पहले आपके पास हाजिर होकर अमान तलब कर लें। जी जी यानी अबू सुफियान ये अब्बास को पता चल गया था कि फतेह मक्का का ये वाकया है कि फतेह मक्का में अगर रसूलुल्लाह मक्का में दाखिल हो जाते हैं तो सबको कत्ल कर डालेंगे। तो जी अब्बास जो रसूलुल्लाह का चचा है वो नहीं चाहते थे कि मक्का वालों को कत्ल किया जाए, तो इसलिए जी वो इस कोशिश में थे कि कोई आदमी रास्ते में मिल जाए ताकि उसके जरिए से मक्का वालों को खबर कर दे कि आप लोग जो है अभी भी वक्त है, रसूलुल्लाह के पास आ जाओ, अमान तलब कर लो और आप लोग जो कत्ल होने से बच जाओगे। अच्छा 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 हाँ 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 जी 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 हजरत अब्बास का बयान है कि बखुदा मैं रसूलुल्लाह के खच्चर पर सवार जा रहा था कि मुझे अबू सुफियान और बुदैल बिन वर्का की गुफ्तगू सुनाई पड़ी। जी जी और ये रात का वक्त था। ये रात का वाकया है। अबू सुफियान और बुदैल बिन वर्का रात में कहीं पर गुफ्तगू कर रहे थे तो उन दोनों की गुफ्तगू इनको सुनाई पड़ी। अच्छा ठीक अबू सुफियान कह रहा था कि खुदा की कसम जी अबू सुफियान कह रहा था कि खुदा की कसम मैंने आज रात जैसी आग और ऐसा लश्कर तो कभी देखा ही नहीं। और जी। जवाब में बुदैल कह रहा था ये खुदा की कसम बनु खुज़ा है, जंग ने उन्हें छील कर रख दिया है। उस पर अच्छा। अबू सुफियान कह रहा था खुज़ा इससे कहीं कुत्ते और जलील है कि उनकी आग और उनका लश्कर हो। जी जी हजरत अब्बास कहते हैं मैंने उसकी आवाज पहचान ली और कहा अबू हंजला। उसने भी मेरी आवाज पहचान ली और बोला अबुल फजल। मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्या बात है, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। मैंने कहा ये रसूलुल्लाह हैं, लोगों समेत हाय कुरैश की तबाही। ये जी। अब्बास कह रहे हैं। जी अब्बास अबू सुफियान को पहचान लिए, अबू सुफियान ने अब्बास को पहचान लिए। जी अब अब्बास कह रहे कि हाय कुरैश की तबाही। हम्म, अच्छा, अब्बास और अबू सुफियान ये दोनों लंगूटिए यार थे। ये दोनों जी यहाँ जी, से भी आप सबको समझ में आ गया कि दोनों ने रात के अंधेरे में एक दूसरे की आवाज सुनकर के पहचान ली। जी ठीक है, तो अब्बास ने अबू सुफियान को सारा वाकया बता दिया कि ये जो आग जल रही है और ये जो लश्कर है ये मोहम्मद का लश्कर है और उन्होंने आग जलाई है और अब जो है पूरे मक्का में कुरैश की तबाही है क्योंकि सबको कत्ल हो जाना है। जी हाँ अब यहाँ देखिए उसने कहा, उसने कौन? अबू सुफियान ने कहा अब क्या हीला है, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, यानी बचने का रास्ता क्या है? मैंने यानी अब्बास ने, मैंने कहा वल्लाह अगर वो तुम्हें पा गए, जी वल्लाह वो अगर तुम्हें पा गए तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे। जी ये कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह के चचा अब्बास कह रहे हैं अबू सुफियान से। अबू सुफियान से, जी हाँ जी अब उन मुनाफिकीन जो हिपोक्रेट मुल्ला है जो ये चीखते हैं कि रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन थे और जी। उन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ देखिए अब्बास खुद अपने दोस्त अबू सुफियान को क्या कह रहे हैं कि खुदा की कसम अगर वो पा लेंगे तुम्हें तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे। जी हाँ अब अब्बास अबू सुफियान को बचाने के लिए, क्योंकि दोस्त थे, जी। तो अबू सुफियान को बचाने के लिए अब्बास ने कहा इस खच्चर पर पीछे बैठ जाओ, जी मैं तुम्हें रसूलुल्लाह के पास ले चलता हूँ और तुम्हारे लिए
امان طلب کیے دیتا ہوں. جی اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے. جی حضرت عباس کہتے ہیں میں ابو سفیان کو لے کر چلا. جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے, مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں. جی یعنی رات کا وقت تھا, رسول اللہ کے لشکر جگہ جگہ پر پڑاؤ ڈال کے آگ جلا رہے تھے اور عباس ابو سفیان کو لے کر جا رہے تھے. تو راستے میں جہاں کہیں بھی کسی بھی لشکر کے سامنے سے گزرتے تو لوگ پوچھتے کہ بھائی کون ہے, لیکن جیسے ہی رسول اللہ کا خچر نظر آ جاتا تو پہچان لیتے کہ بھائی یہ رسول اللہ ہی کے کوئی ہے اور ان کے چچا ہے. یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب کے الاؤ کے پاس سے گزرا, جی انہوں نے کہا کون ہے اور اٹھ کر میری طرف آئے. جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن, اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا. اس کے بعد وہ یعنی عمر نکل کر رسول اللہ کی طرف دوڑے. جی عمر رسول اللہ کی طرف کیوں دوڑے؟ تاکہ وہ اجازت لے کر کے آئے کہ ابو سفیان کی گردن اڑا دے. جی تو اجازت لینے کے لیے عمر جو ہے دوڑ پڑے. جی دوسری طرف عباس چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان کو بچائے. تو عباس کہتے ہیں اور میں نے بھی خچر کو ایر لگائی. جی آگے بڑھایا. جی ہاں, میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ کے پاس جا گھسا. جی اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے جی جی اور پھر؟ بولے کہ اے اللہ کے رسول, یہ ابو سفیان ہے, مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں. یہ دیکھیے یہ رحمت للعالمین ہے اور ان کے صحابہ کرام یہ رحمت للعالمین ہے, اور دیکھیے کس طرح کی رحمتیں بانٹ رہے ہیں. جی ہاں جی میں نے کہا یعنی عباس, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, میں نے اسے پناہ دے دی ہے. پھر میں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا. یعنی کوئی بھی شخص آ کر کے رسول اللہ سے بات کرے گا, سرگوشی کرے گا اور سرگوشی کر کے اجازت لے گا اور ابو سفیان کو مار ڈالے گا. تو عباس کی پوری کوشش ہے کہ کوئی بھی رسول اللہ سے بات چیت نہ کرے. جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ, خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے. یعنی عباس نے کہا کہ اگر یہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم ایسی بات نہیں کرتے, لیکن چونکہ ابو سفیان قریش کا ہے اور قریش سے تمہاری دشمنی ہے اس لیے تم اس طرح کی بات کرتے ہو. جی عمر نے کہا عباس ٹھہر جاؤ, خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے, اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے. خیر یہ دونوں میں نوک جھک ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ, صبح میرے پاس لے آنا. جی اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا. جی آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا, آپ نے یعنی رسول اللہ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کہ اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا, آپ کتنے بردبار, کتنے کریم اور کتنے کیا ہے یہ خیش پرور ہیں. خیش پرور ہیں. جی یہ کیا خیش طریقہ پرور ہے سچ والا جی, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہے. ہم عام بول چال میں بھی ایک دوسرے کو نہیں بولیں گے نا, ان کا کلچر ہے وہ. کلچر ہے وہ اس طرح سے. جی 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 میں اچھی طرح, ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا. جی جی صحیح یعنی بات. ابو سفیان بھی ایک ہی اللہ کو مانتا تھا, وہ دو اللہ کو نہیں مانتا تھا. جی جی تو یہاں اس بات پر دھیان دیجئے, رسول اللہ نے کہا کہ بھائی تمہیں اب تک جان لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ ہی ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے. جی اس پر جھگڑا نہیں تھا. آگے دیکھیے, آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس, کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جی یہاں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا, آپ کس قدر حلیم, کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں. میں اس بات کے متعلق اب بھی دل میں
कुछ ना कुछ खटक है। अरे बाप रे। बड़ी हिम्मत वाला। इख्तलाफ किसमें है? इख्तलाफ अल्लाह एक है या दो है, मूर्ति पूजक है, बुत परस्ती, उसमें नहीं है। अबू सुफियान भी एक ही अल्लाह को मानता था। जी अब ये देखिए कि 8 हिजरी रसूलुल्लाह को दावत देते देते कितने साल हो गए? तो इधर 8 सच साल वाला उधर जी। 13 साल 21 साल हो गए। 21 साल 21 जी। साल अबू सुफियान रसूलुल्लाह से लड़े, जंग किए, जंग बदर किए, जंग ओहद किए, सब कुछ किए। ये सब होने के बाद अब अबू सुफियान जो है बिल्कुल रसूलुल्लाह के रहमो करम पर है, उनके सामने है बिल्कुल। जी और क्या कह रहे हैं? अब भी मेरे दिल में कुछ खटक है। हाँ, आप अल्लाह के रसूल हैं, इस बात के मुतालिक तो अब भी मेरे दिल में कुछ ना कुछ खटक है। जी इस पर मैंने कहा, ये अब्बास अब्बास कह रहे हैं। जी अब्बास जो है बहुत होशियार था। वो समझ गया कि यार ये तो खेल बिगाड़ दे रहा है ये। जी मैं इसको बचा रहा हूँ और ये अपनी गर्दन जो तलवार के नीचे डालने जा रहा है। जी सच बोल के, सच बोल के। जी हाँ, जी। उस पर मैंने कहा, अरे गर्दन मार जाने की नौबत आने से पहले पहले इस्लाम कबूल कर लो। जी वो कानाफूसी कर रहा है वो अब्बास। जी 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 हो सकता है बोला भी होगा बेवकूफ, कमबख्त, कमीना, जी। समझता नहीं, तो बोला भी होगा वो। तू बचा रहा, मैं तू बेवकूफ है, हाँ, जी खाली अभी नहीं तो वो पढ़ ले देखो ना, बस। वो जी। देखो रात में खच्चर पे बिठा के लेके आए, जान जी, बचाए, वाकई। रात भर बचा रहे, जी और उसको जी हाँ समझा रहा है, मगर अबू सुफियान ने अड़ियल बन करके बोल रहा है कि नहीं। जी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए अबू सुफियान और जो है अब्बास में, तो जो है अब्बास बड़ा जो है चालबाज है और जो है अबू सुफियान बड़ा बुद्धू नजर आ रहा है यहाँ पर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं वो, नहीं नहीं बिल्कुल। जी नहीं नहीं या नहीं नहीं, मतलब अभी बहुत। जी हाँ बोलिए। जी दोनों इंतहाई होशियार थे। और मैंने शुरू में कहा था कि देखिए, अबू सुफियान के खानदान ने उमवी हुकूमत की, रसूलुल्लाह को जहर दे के मरवाया गया और अली खलीफा बनने वाले थे, मगर अली को खिलाफत से हटाने के लिए अबू बकर, उमर, उस्मान को खिलाफत में लेके आए ताकि अबू सुफियान के खानदान के लोग खिलाफत कर सके। जी अबू सुफियान उमवी हुकूमत के, आप जो है आदम कहिए या बाबा आदम, ठीक। अच्छा, बानी कह रहे हैं। जी हाँ, जी बानी। हाँ उमवी हुकूमत गिरा करके जो खिलाफत बनी वो है अब्बासी खिलाफत, जो अब्बास पर बनी है। और ये दोनों कहाँ पे है? मक्का में, रसूलुल्लाह के सामने ये इस्लाम की नौटंकी कर रहे हैं। यानी आप दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ अब्बास है और अबू सुफियान है, एक जो है उमवियों का बानी है, एक अब्बासियों का बानी है। एग्जैक्टली। और इन जी दोनों ने मिल करके रसूलुल्लाह का जो प्लान था उसको फेल किया है। और इन दोनों ने मिल करके जो है वो जो दावत थी, इस्लामी दावत, उसको हाईजेक करके अपने फेवर में किया है। हाँ जी जी जी। अच्छा, उसका बरतानी साहब, एक सेकंड ताहिर, हाँ मैं यहाँ पे एक ताजे पस मंजर में एक बात जोड़ दूं या, कि ये अबू सुफियान जो है तो ये एकनाथ शिंदे है, और हजरत अली जो है तो उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र की सियासत के दो कैरेक्टर जोड़ दिया मैंने। और झूठा नबी एक उनके अब्बास सामने है, बैठा अबू हुआ है। सुफियान भी वो है। हाँ झूठा वो कैसे? असल में ये दोनों को पता है। इसका मतलब ये शक क्या जी कहता है, जी अब्बास को भी हाँ, पता है और अबू सुफियान को भी पता है। जी जी। बिल्कुल। ताहिर साहब, इसका एविडेंस मैं कुरान से दूंगा। अगर सच्चा नबी सामने बैठा होता तो क्या बोलता थे? वो बोलता, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये कह के वो खामोश। अगर वो वाकई आसमानी किताब में बिलीव करता और खुदा की राह में होता तो वो ये कह के खामोश हो जाता। बस जी बिल्कुल सच वाला हम साहब। बिल्कुल सही कहते फरमा हैं जी रहे कि हैं। कदम कदम पर जो है यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स और जो है अपनी मनमानी वाली बात जो होती है ना वो नजर आती है हर जी जगह। हाँ, जी हाँ, ये शायद उसकी है सूरह सूरत तकवीर की जी हाँ, तकवीर की तकवीर आखिरी की। जी हाँ, आयत। जी हाँ, जी। उसका मतलब सच्चा सा बता दीजिए आप लोग ऑडियंस से। नहीं, उसका वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन का मतलब यही है जी हाँ, कि तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, असल चाहत, असल मर्जी तो असल मशीयत तो अल्लाह की है जी हाँ, और वो जो है वो तमाम आलमों का रब है। जी ये बात इसमें कही जी गई। हाँ। जी तो अगर वाकई ये नबी होते और इन पे उतरा होता कलाम तो ये पढ़ के उसको सुना देते और ग्रेसफुली उठ के चले जाते। तो अगर उन्होंने जी इसको, डॉक्टर साहब, हाँ जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, जी आगे चलिए। जी, यहाँ पे एक सोनू कुमार भाई है, वो शायद मैंने एक लफ्ज मूर्ति पूजक यूज किया है तो शायद उस पर उनको इतराज है। तो सोनू भाई, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडियन जो हमारा कल्चर है इससे भी मुझे दूर रखा गया है। नहीं नहीं तो दाहिद भाई, बेख्याली में मेरे पास भी यही बेख्याली उनको प्रॉब्लम है। एतराज नहीं है उस बात पे, अच्छा 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 अच्छा, एतराज चलिए। ठीक है नहीं है। ठीक। वो आपने मूर्ति पूजक बोला तो उसकी वजह से कुछ आपका वो बैकग्राउंड चेक कर, मतलब वो
पता करने की कोशिश इंडियन कर है रहे क्या थे पूछ कि रहे? आप हाँ, किस सब कॉन्टिनेंट से हैं। ढूंढ रहे आप अरे भाई मैं जाहिर इंडियन हूँ, साहब। मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हाँ, हूँ। बस वो यही बोल रहे थे कि उन्होंने हाँ हाँ मूर्ति पूजक शब्द का प्रयोग किया, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो इंडियन है। हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल इंडियन है, क्योंकि अब हम पाकिस्तानी कभी नहीं बोलते मूर्ति पूजा। ठीक है, तो अभी ये देखिए, अब्बास अबू सुफियान को कोसते हुए कहते, अरे गर्दन मार जाने की नौबत आने से पहले पहले इस्लाम कबूल कर लो, जी और ये शहादत वो इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जी उस पर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया और हक की शहादत दे दी। हक की शहादत दे दी। अच्छा भाई, ओफो, हाँ। हक की शहादत ये हक है। अच्छा जी, इस हक के बारे में ये दोनों जानते हैं, जिसके अब्बास भी जानते हैं, अबू सुफियान भी जानते हैं। अब्बास हाँ जो है बनु अब्बास के जो है का बानी है, और जो है अबू फडनवीस है, सुफियान जो है फडनवीस, बनु उमैया हाँ का बानी है, और ये दोनों जानते हैं इनकी हकीकत, ये हाँ। और चांद की दोनों हकीकत को ये दोनों जानते हैं। जी हाँ, दोनों लंगूटिये यार है, और दोनों के बारे में कभी मुझे मौका मिला तो लेके आऊंगा। दोनों जो है कभी कभी एक ही औरत के पास जाया करते थे। ये लोग जो है बहुत अरे सारी अरे औरतों के साथ जो रात अरे, गुजारा है। मोर देन लंगोटिया यार। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मोर देन कह सकते हैं। लंगोटिया डार जो है फिर अरे भी कहीं यार, न कहीं जो है वो, हाँ, वो मोर देन कह सकते हैं आप। जी हाँ, जी, जी। बिल्कुल, ये ये बहुत इनकी, लंगोटिया यार प्लस कहेंगे आप। जी। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, पलंग यार भी कह सकते हैं, पलंगिया यार, हाँ, पलंग यार चारपाई यार। कहेंगे। हम जुल्फ तो नहीं कह सकते, वो तो लीगल टर्म हो जाएगी। हाँ जी, जी, हाँ, हाँ, जी, जी। ठीक है। जी हाँ, जी, जी डॉक्टर साहब। मैंने कहा, तो मैंने यानी अबू सुफियान अब यहाँ पे कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अच्छा नहीं, मैंने कहा ये अब्बास कहते हैं, अब्बास कहते हैं अल्लाह के रसूल। अबू सुफियान एजाज पसंद है, एजाज यानी अबू सुफियान को पसंद है कि उनकी इज्जत की जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, लिहाजा इसे कोई एजाज दे दीजिए। आपने फरमाया ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब प्रॉफिट मोहम्मद की जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी है, या ये कहिए कि वो पॉलिटिक्स में कितने माहिर थे, यहाँ पे देखिए आप। जी हाँ, सही। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसे अमान है। जी, जी, ये क्यों जी, कहा है? ताकि जी, अबू सुफियान की इज्जत बढ़ जाए और जी, मक्का में सारे लोग जो अबू सुफियान की इज्जत करने लगे। जी। इस इसलिए वजह से कहा उन्होंने। हाँ, इस अबू वजह से सुफियान को उन्होंने। खुश करने के लिए, जी, क्योंकि अबू सुफियान उनके ससुर भी थे। उम्मे हबीबा जो इनकी बेटी है, जी, जी, रसूलुल्लाह की बीवी थी, तो बीवी ससुर है। तो पहले से थे। जी, और अब अबू सुफियान ने सरेंडर कर दिया। अच्छा, रसूलुल्लाह को मक्का में सबसे बड़ा खतरा किससे था? अबू सुफियान से था। जी, जी हाँ, अच्छा अब अच्छा। जब अबू सुफियान सरेंडर कर दिए, तो अब रसूलुल्लाह चाहते हैं कि मक्का में अबू सुफियान की इज्जत बढ़ जाए। जी, तो इसीलिए ये जुमला वहां पे ऐलान किया कि जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसे अमान है। जी हाँ। यानी मतलब ये है कि ये भी एक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। बस बिल्कुल रणनीति है, पॉलिटिक्स जी, है ये, बिल्कुल। राज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात, हाँ, राजनीति है। जी, बिल्कुल सही। यहाँ तो इस स्टोरी में सच वाला हर एक अपना गेम खेल रहा है, ऐसा लगता जो अपने-अपने गेम खेल कर जो है ये लोगों का, हमारे ये असल में मसला ये है कि ये हमारे इलाके के मुसलमान या आज के मुसलमान इस्लाम को जैसे एक तकद्दुस की नज़र से देखते हैं ना, ये उनकी इन नज़रों पर, उनके इस अंदाज़ पर बड़ा तरस आता है यार। जो है क्या ये लोग जो है अपनी जानों को इसके लिए जो है कुर्बान करने के लिए थे। असल में बकरे यही हैं। ये लोग दो सारे पैर जो वाले है बकरे, मलाइका, हाँ। ये कहते हैं ना कि जो है सबको यानी मतलब चूना लगा गए, और ये हम सबको जो है ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगे हैं, भाग रहे हैं। ट्रक आगे भाग रहा है, हम पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, हमको पता कुछ भी नहीं है ट्रक के अंदर क्या है, ट्रक में क्या है, किसी को भी पता कुछ भी नहीं है, लेकिन हर कोई ट्रक के पीछे भाग रहा है। है। जी ये हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, ये जो आप वाकया जहाँ से बयान कर रहे हैं, इसमें क्या उस बात का जिक्र है जब हिंदा जो है उसको ये खबर मिलती है कि अबू सुफियान जो मुसलमान हो गया, उसने मोहम्मद को आने की इजाजत दे दी है, तो उसका जो रिएक्शन था वो इसमें है क्या? उसका जिक्र है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। होगा आगे ठीक है, बात बस सही, फिर पढ़ते जाइए, आपको जो पढ़ना है पढ़िए, फिर सुनेंगे। वही बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है वैसे। अगर इसमें नहीं होगा तो मैं, जो मुझे इसमें याद है है, मैं बयान इसमें करूंगा। है, वो है। अच्छा, तो फिर सही है, है, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, और उस औरत को मैं तो सलूट करता हूँ उसके इस रिएक्शन। हाँ। नहीं, वो अपने वक्त की जो है वो तो वाकई जो है बड़ी हीरोइन है। वो बहादुर औरत थी, बहादुर औरत थी। लाजवाब। वाह जी। और दाहिर अब साहब, क्या। मैं भूल जी, जाऊंगा फिर से ये, इसके साथ ही कनेक्टिंग वो एक किस्सा जो है कि वो अगले खलीफा के लिए जो नामजदगी करते हैं, उसके अंदर से उन्होंने झगड़े हुए, बहुत लड़ाई हुई, कई लोग मर गए, तो फिर किसी ने सुलह सफाई की और कहा कि भाई दोनों लड़ने के बजाय दोनों भी नाम विड्रॉ करो, नया उम्मीदवार दे दो।
नया कैंडिडेट दे दो। ताहिर साहब आप म्यूट हैं। हाँ ताहिर साहब म्यूट हैं। हाँ ठीक है, ये वाकया हम ये इससे समझ में आता, जितने भी व्यूवर्स है वो ये देखे कि अबू सुफियान जिनका बेटा है मुआविया ने अली को जंग सिफीन में, वहां पे जंग हुई थी अली के खिलाफ, जी तो वहां पे मुआविया चाहता था कि अली को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह के जो है वारिस या जानशीन सिर्फ अली बचे हुए। तो जंग सिफीन मुआविया ने इसीलिए किया था कि एक तरफ अली को कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद से पूरा कंट्रोल जो है बिल्कुल अपने हाथ में ले ले, और वहां से वो अपनी सरकार और अपनी जो आइडियोलॉजी को चलाए। जंग सिफीन में आयशा माविया की साइड में थी ना? नहीं, जी हाँ। उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी, वो जमल में थी। इसमें जमल में दावत किया था तो उसमें, लेकिन सपोर्ट उन्होंने इनको किया था ना, सपोर्ट था। हाँ, तो मैं सिर्फ कड़ियों को जोड़ता हूँ कि अबू सुफियान कौन था। मुआविया, इन्होंने सन 40 से लेकर के 60 हिजरी तक 20 साल तक जो खिलाफत की है, और ये मुआविया वही ये अबू सुफियान का बेटा है। मुआविया ने असल में क्या किया था कि इन 20 सालों में पूरे इस्लाम का ढांचा ही बदल दिया। अच्छा, अब जो आपने जो वाकया बयान किया वो भी इसी से रिलेटेड है कि अबू सुफियान ये फतेह मक्का में जैसे ही वो इस्लाम कबूल करता है तो अबू सुफियान ने बज़ाहिर सरेंडर कर दिया था, लेकिन वो प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह रसूलुल्लाह को हटा करके ये जो पूरी जो कामयाबी है, पूरा जो मोमेंट है, इसको अपने कंट्रोल में कर ले। और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह ये चाहते थे कि उनके बाद अली को खलीफा बनाया जाए। तो सन 10 हिजरी में जब हज्जतुल विदा होता है, हज्जतुल विदा में जिसमें रसूलुल्लाह अपने तमाम तकरीबन 1 लाख सहाबा के साथ हज करने जाते हैं, हज से जब वापस आते हैं तो एक जगह है, उसका नाम है गदीर खुम। उस गदीर खुम नामी जगह में रसूलुल्लाह तमाम सहाबा के सामने अली को अपना वसी घोषित करते हैं कि आज के बाद अली मेरा वसी है, यानी मेरे बाद अली जो है ये सब कुछ जो संभालेंगे, या खलीफा बनेंगे या जानशीन बनेंगे। वहां पर अबू सुफियान और उसके जो जितने भी मानने वाले थे उन लोगों को बड़ा धचका लगा, और वहीं पर उन लोगों ने मीटिंग करके रास्ते में रसूलुल्लाह को कत्ल करने का प्लान करते हैं, मगर वो प्लान कामयाब नहीं होता। ये 10 हिजरी का वाकया है। इसके बाद वहां से जो है रसूलुल्लाह जैसे मदीना में पहुंचते हैं, यहाँ पे रसूलुल्लाह को जहर दिया जाता है, क्योंकि ये जो अबू सुफियान का ग्रुप था, इन लोगों को पता चल गया कि अगर अली को अगर खलीफा बना दिया जाए तो हमारा आइडिया है या हम जो चाहते हैं इस पे पानी फिर जाएगा, इसलिए अली खलीफा बनने से पहले रसूलुल्लाह का किस्सा तमाम कर दिया जाए। तो वहां पर बहुत ही होशियारी के साथ रसूलुल्लाह को जहर दिया गया, और जब रसूलुल्लाह को जहर दिया गया, जिसमें बुखारी के अंदर है कि रसूलुल्लाह बीमार रहे, तो उस बीमारी के हालत में रसूलुल्लाह कहते हैं कि लाओ कागज, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज लिख दूं ताकि तुम लोग गुमराह ना हो। और असल में वो रसूलुल्लाह हदीस किरतास की बात आप कर रहे हैं। जी, हदीस किरतास की बात, हदीस जी, किरतास की बात। रसूलुल्लाह ये चाह रहे थे कि जो गदीर खुम में अली को वसी बनाया था वो तो वर्बल था, जुबानी था, लेकिन रसूलुल्लाह उसको लिख करके देना चाह रहे थे ताकि किसी को अली की खिलाफत में इख्तलाफ ना हो। अब वहां पे अबू बकर मौजूद थे, आयशा मौजूद थी, उमर मौजूद थे, हफ्सा मौजूद थी। इन लोगों ने देखा कि अगर रसूलुल्लाह ने कागज में खिलाफत के लिए अली को नामजद कर दिया तो हमारी तो हैसियत खत्म हो जाएगी। तो उमर जो है बहुत होशियारी के साथ कहते कि नहीं नहीं नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रसूलुल्लाह बीमार है, परेशान है, हमको क्या जरूरत है, अल कुरान यकफी, कुरान हमारे पास काफी है। और फिर वहां पे हस्बुना किताबुल्लाह का जो है उनका जो नारा थे ना, हस्बुना किताबुल्लाह। हाँ, ये उमर ने वहां पे कहा था कि हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब हमारे लिए काफी है। मतलब यह है कि उमर खुद ये कहते कि हदीस की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि फिर वहां पे जो है दोनों फरीक में झगड़े हुए। हजरत अली के भी फरीक थे, उन्होंने चाहा कि लिखवा जाए, क्योंकि सबको मालूम था कि रसूलुल्लाह क्या लिखने वाले हैं। रसूलुल्लाह ये नहीं लिखना चाह रहे थे कि कयामत कब आएगी और फला ढकन। रसूलुल्लाह ये लिखना चाह रहे थे कि अली को मैं खलीफा बनाता हूँ, और ये चीज अली को भी मालूम था, फातिमा को भी मालूम थी, और जो उमर है, अबू बकर है, और अबू सुफियान के जितने भी हिमायती उनको भी मालूम था। इसलिए ड्रामा करके ये कह दिया गया कि नहीं रसूलुल्लाह बीमार है, और शोर गुल हुआ, और फिर वो चीज वहीं पर दफना दी।
اور پھر میرے خیال سے یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہے یہ جو ہے رسول اللہ کی موت کے بعد جو لاش ہے وہ پتہ نہیں کتنے ٹائم تک پڑی رہی، اس 3 میں دن تعفن، جی ہاں تعفن، جب بدبو آنے لگی تب جو ہے اس کو ان لوگوں نے تو نہیں بلکہ علی نے جو ہے ان کو اسی جگہ پر جو ہے دفنا دیا. یہ باتیں بھی تو جو ہے البدایہ والنہایہ اور پھر جو ہے تاریخ الملوک کیا ہے وہ تاریخ الملوک والامم، جی جی اس میں جو ہے یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا. جی اور کسی ہاں نے میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یہ بھی بڑی تعجب کی بات. ہاں، جی نماز میں جنازہ 2 کہاں منٹ سے میں پڑھا؟ میں جی اصل میں وہ جو کانفرنس اور وہ جو سازش تھی اسی کا جی تھوڑا سا ایک ہلکا سا پردہ ہٹانا وہاں سے. جی 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 ہاں ضرور ضرور. جی جی ڈاکٹر یہ صاحب. جو ہوا تھا وہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ کو وہ وصیت لکھنے کیوں نہیں دیا گیا تھا، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ تھا جی جی ہاں جی ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. صحیح اور بات. رسول اللہ کو جو موت ہوتی ہے وہ زہر دیا گیا تھا. بعد میں عائشہ، چونکہ عائشہ خود باغی ہو گئی تھی، انہوں نے ایک کانفرنس کریٹ کی اور کہا کہ نہیں وہ خیبر کی وہ یہودیہ تھی، اس نے زہر دیا تھا، اس زہر کی وجہ سے مری. یہ بالکل فیک ہے، جھوٹی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات ہو گئی. اب رسول اللہ جو ہے وہاں پہ ان کی وفات ہو جاتی ہے. وفات ہونے کے بعد علی چونکہ داماد ہیں، فاطمہ بیٹی ہیں، اور علی جو ہے علی دل سے رسول اللہ کو چاہتے تھے. اور میری اپنی نظر میں اگر رسول اللہ کے وارث بننے کا کوئی حقدار تھا تو وہ حقیقت میں حضرت علی ہیں، جی ہاں جی ہاں، یہ کیونکہ وہ بات تو ہے. سچے تھے. وہ سچے تھے، جی بہادر تھے، اور رسول اللہ کے لیے سب کچھ انہوں نے کیا ہے، تو خلیفہ ان کو بننا چاہیے تھا. جی تو علی جو ہے رسول اللہ کو اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں، اور علی کے گھر میں رسول اللہ کی وفات ہو جاتی ہے. رسول اللہ کی جیسے ہی وفات ہوتی ہے، حضرت علی، فاطمہ اور جو بنو ہاشم تھے، رسول اللہ کے خاندان کے لوگ تھے، وہ لوگ سب جو ہے پریشان ہیں، اور ان کو لے کر کے وہ لوگ جو ہے وہاں پہ پریشان ہیں. جیسے ہی جی عمر کو پتا چلتا ہے تو ابو سفیان کا یہ جو گروپ تھا، ان لوگ جو ہے اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ بھائی جیسے فوراً جو ہے اپنے جو ہے گدی پہ گدی کو اپنے ہاتھ کیا جائے. ان کی پلاننگ الگ چل. ادھر علی اور بنو ہاشم وہ لوگ بھی سوچ رہے کہ اب رسول اللہ تو مر گئے تو اب کیا کرے. دوسری طرف ابو سفیان کا گروپ جس میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان غنی ہیں، یہ لوگ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. جی تیسری طرف جو مدینہ کے انصار تھے، قبیلہ خزرج کا سردار سعد بن عبادہ، جی سعد بن عبادہ نے سوچا کہ بھائی اب تو رسول اللہ مر گئے، اور پورے مہاجرین اور رسول اللہ کو ہم لوگوں نے مدینہ کے اندر جگہ دی، ہم نے ان کی جو ہے مدد کی، لہٰذا اب چونکہ رسول اللہ انتقال کر گئے اس لیے اب ان کے بعد وارث بننے کا سب سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں. تو سعد بن عبادہ اپنے تمام خزرجی اور انصار کے بھی بہت سارے لوگوں کو لے کر کے ثقیفہ بنی ساعدہ جو اس وقت مسجد ثقیفہ نبوی بنی کے پاس ساعدہ. موجود ہے، جی ہاں جی ہاں، ثقیفہ بنی ساعدہ. ساعدہ میں گئے اور وہاں جانے کے بعد اپنی خلافت کا اعلان کرنا شروع کر دی. صحیح بات. کسی نے آ کر کے ابو بکر کو بتایا کہ بھائی وہاں تو تم لوگ یہاں ہیں، ادھر تو سعد بن عبادہ خلیفہ بننے کی تیاری کر رہے ہیں. جی ابو بکر کے ہوش اڑ گئے اور دوڑ کر کے عمر کو جا کے بتایا. جی عمر نے کہا کہ ارے باپ یہ تو غضب ہو جائے گا. تو ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کے جلدی جلدی دوڑے کہاں پہ؟ ثقیفہ بنو ساعدہ میں. جی اور وہاں پہ جانے کے بعد پھر جو ہے دونوں فریق میں ڈائلوگ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی، بہت لمبا واقعہ ہوتا ہے. اور عمر نے بہت چالاکی کے ساتھ سب کے سامنے سب کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ میں ابو بکر کو خلیفہ بناتا ہوں، اور میں نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں بیعت کی، اور فوراً جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی. جو بھولے بھالے مسلمان تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے یار یہ تو بیعت کر لی. تو پھر وہ لوگ جو ہے آگے پیچھے ایک کے بعد جو ہے حضرت عمر کے ہاں ملاتے ہوئے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دیے. اور یہ بات مدینہ میں پھیلنی شروع ہو گئی کہ لوگوں نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان لیا، جی جبکہ یہ بہت ہی ہوشیاری اور مکاری کے ساتھ یہ کام کیا گیا تھا. جی. دوسری طرف علی اور ان کے خاندان کے لوگ، ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو پوری جو سازشیں ہو رہی تھی، جوڑ توڑ ہو رہی تھی، اس میں یہ تقریباً 2 دن اور بعض روایتوں کے مطابق 2.5 دن یا 3 دن کا وقت گزرا، اور رسول اللہ کی جو لاش وہیں پر پڑی رہی. صحیح بات. آخر میں سعد بن عبادہ یہ وہ صحابی ہے جو قبیلہ خزرج کا سب سے بڑا سردار تھا اور سارے لوگ ان کو مانتے تھے. آخر میں سعد بن عبادہ جو ہے تنگ آ کر کے مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے کیونکہ خلیفہ ابو بکر بن گیا تھا اور ابو بکر کو کنٹرول کرنے والے تھے عمر, اور عمر سے اور سعد بن عبادہ سے جمتی نہیں تھی کیونکہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ بننے سے روکنے والا عمر تھا. تو آخر میں سعد بن عبادہ مجبور ہو کر کے مدینہ چھوڑ کے
मुल्क शाम की तरफ चले जाते हैं। जी फिर जब उमर की खिलाफत का जमाना आता है, उमर जो बार बार साद बिन उबादा को जो है टॉर्चर करते और कहते कि मुझे खलीफा मानो। जी साद बिन उबादा ना तो अबू बकर को खलीफा माना था और ना ही उमर को भी खलीफा मानने से इनकार कर दिया। तो आखिर में कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि उमर ने दो तीर अंदाज, जिसको स्नाइपर कहते, तीर अंदाज को भेजा, और कुछ लोगों का कहना है कि मुआविया ने भेजा था। वो दोनों तीर अंदाज गए और साद बिन उबादा को दूर से तीर मार के उसको जो वहीं पर खत्म कर दिया। जी ये वाकया है हजरत उमर की खिलाफत के आखिरी दिनों का, तकरीबन जो है सही से याद नहीं है, लेकिन उमर की खिलाफत के आखिरी सालों का ये वाकया है। जी जी साद बिन उबादा को जब तीरों से मार दिया गया तो इस जुर्म को छुपाने के लिए, अब देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी झूठ गढ़ी गई है, इस जुर्म को छुपाने के लिए मदीना में और तमाम मुसलमानों में यह फैला दिया गया कि साद बिन उबादा खड़ा होकर के पेशाब कर रहा था, इसलिए एक जिन ने साद बिन उबादा को मार डाला है। अरे अरे अच्छा, खड़े होकर पेशाब नहीं करना, इसका मतलब जिन मार डालेगा। अच्छा जी। और अब तक हमारे मदारिस में और ये मुस्लिम जो हमारे दो टांग के बकरे हैं, अब तक ये लोग यही समझते हैं कि साद बिन उबादा खड़े होकर के पेशाब किया था इसलिए उसको जिन ने मारा है, जबकि हकीकत ये थी कि उनको मारने की वजह ये थी और उनको मारने वाले ये लोग थे। जी, ये पूरा गैंग था। जी, व्हाट ए स्टोरी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो है ये पैगंबर इस्लाम का जो है जो भी मामला है, इनकी अपनी जो भी, तो इनके ऊपर एक जो है शेर को सवा शेर साबित हुए ये लोग। ऐसा ही हुआ एग्जैक्टली। अबू जी, सुफियान भारी पड़ गए शेर और को। पूरा जी हाँ, पलट जी दिया हाँ, है। जी हाँ। अच्छा, फिर इनमें से 3 का कत्ल हो जाता है, मुसलमान ही कत्ल करते हाँ, इनमें से फिर अबू बकर को देखते कि भाई अबू बकर को खलीफा बना दिया गया, लेकिन देख रहे कि मर नहीं रहा है, तो 2.5 साल के बाद उनको भी वही जहर दिया गया जो रसूलुल्लाह को दिया गया था। अरे 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 अरे, मतलब रसूल और चारों खलीफा मर्डर किए गए। हाँ, अच्छा, उसके अबू बकर के बाद जब उमर खलीफा बनते हैं तो इनकी खिलाफत तकरीबन 11 साल 12 साल लंबी हो जाती है। तो शाम में जो मुआविया था वो परेशान हो गया कि यार ये अगर लंबा खींच गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि पासा पलट जाए। तो आखिर में मुआविया मदीना में अबू लुलू को भेजता है और नमाज, फजर की नमाज में उमर का किस्सा तमाम कर दिया जाता है। और इसके बाद खलीफा बनते उस्मान गनी, जो कि मुआविया के खानदान का था और रिश्ते में भाई भी थे और बहनवी भी थे। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि इस्लाम की शुरुआत ही में जिस मनहज को नबूवत कहा जाता है और फिर उस मनहज को जिसे आज हम खिलाफत कह रहे हैं, और ये खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा है। अब अगर आप इसको जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है देखें, एक एक चीज पर जो है जब आप नजर डालते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये पूरा ये है पूरे का पूरा मामला नबुव्वत भी और ये खिलाफत आला मिनहाज नबुव्वत, ये सारा का सारा मामला में सिर्फ मार धाड़ और जो है सियासी जो है रस्साकशी और जो है मैं बड़ा तू बड़ा और जो है मैं आगे निकलना तू आगे निकलना, और सबकी मौतें हुई हैं इसमें इसी तरह। क्या ये रसूलुल्लाह दुनिया की भी की मौत हुई चाहत है। है? ये नहीं, लग ही नहीं रसूलुल्लाह रहा की कि अल्लाह मौत को हुई मानने है। वाले लोग। ये रसूलुल्लाह की मौत जो है मतलब जाहिर बात है उन्हीं के हल्के के लोगों ने इनको जहर से मारा। उसके बाद जो है पहले खलीफा को भी जो है जहर से मारा, जिस तरह से आपने बताया कि जो है उसी जहर से जिस जहर से जो है रसूलुल्लाह को मारा गया था। उसके बाद फिर जो है वो फिर जो है दूसरे खलीफा की मौत भी, यानी किसी के जो है मतलब क्या क्या नाम है उसका, अबू लुलू कह रहे हैं ना आप? जी, अबू लुलू को कहा गया। जी, मस्जिद में अब मारा उस था शायद, उसने मस्जिद में जी, आके अबू मारा। लुलू फिरोज। जी, अबू लुलू फिरोज। और फिर जो है उस्मान का हाल भी ये हुआ कि उनको मारने के बाद उनकी लाश को भी पता नहीं किसी जो है ऐसी जगह फेंक दिया गया था कि वहां से बड़ी मुश्किल से उनको उठवाना पड़ा। जी जी। उसके बाद अली के साथ यही हुआ, उसके बाद हसन के साथ यही हुआ, फिर हुसैन के साथ यही हुआ। अच्छा, अब हुसैन आप को ये मारा। बताइए कि टोटल मामला, अगर आप, चूंकि हमें जिस तरह से इन बातों को हमारे सामने रखा गया जी या रखा जाता है वो एक और ही मामला है, लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जो है अब ये देखें कि हमारे सामने ये कौन सी किताब, ये वही किताब है ना जिसको बाकायदा जो है अवार्ड्स मिले, और मुसलमानों के नजदीक ये किताब एक जो है एक ऑथेंटिक यानी इसकी अपनी एक ऑथेंटिटी है ना, एक जो है मुस्तनद किताब मानी जाती है, अर्रहीक अल मखतूम। मुझे उसको जब आप पढ़ेंगे और इसके बैन सुतूर का जब आप मुताला करते हैं और इन बातों पर गौर करते हैं, तो ये वही नताइज हैं जो आप ये इसी किताब से जो है सारे नताइज निकाल रहे हैं। तो जी आपको जी तो ये बिल्कुल। लगता है कि सारा का सारा मामला जो है आपको
A to Z یہ سیاست ہے اور ایک دوسرے کی مار کٹائی اور جی ہر ایک کا نتیجہ ہر ایک کی موت طبعی موت نیچرل ڈیتھ نہیں ہو. جی سچ والا جی، اصل میں جب آپ ڈاٹس ملائیں گے اور کڑیوں کو جوڑیں گے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. اتنی جی ہاں خونی تاریخ ہے یہ. جی جی ہاں خونی تاریخ ہے ایگزیکٹلی خونی تاریخ اس کی یہ شروعات داہر بھی صاحب خون سے ہوتی ہے. جی ہاں یہ کسی بھی خدا یا اللہ میں بھروسہ رکھنے والے لوگ اتنی دنیا کی چاہت میں اندھے کی ہاں صرف قتل یہی تو ہم کیے جا دیکھ رہے رہے ہیں. جی ہاں ہر کوئی ایک دوسرے روحانیت کو مار نہیں. رہا ہے. اور اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ دیکھیں جب چونکہ وہ سچویشن ایسی تھی اس نے جو ہے وہ اسلام کی تاریخ کی جو ہے بڑی عظمت کے انداز میں تم کیا جانتے ہیں اسلام کی تاریخ، تو میں نے اس کو 3 لفظوں میں یہ بیان کر دیا کہ اسلام کی تاریخ کو اگر آپ جو ہے نٹسل میں جو ہے بتائیں گے تو وہ ایسی ہوگی کہ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، پھر سب نے سب کو مارا، جی جی بالکل تاریخ ایگزیکٹلی. ختم شد. جی تاریخ جی ختم ہو گئی اسلامی تاریخ.